Hello students, I will discuss now with the students of 12th class. Today it is the last subtopic of the Asian after the Cold War era. Now there is only one matter, that is a Kashmir issue. Kashmir issue which is a tension between the relations of two countries, that is India and Pakistan after the independence of India. This Kashmir issue has created so many tension between the two nations, and still this tension is there in our J&K, and this is a problem creating between the two countries. Now there is a little background behind the Kashmir issue. How was this is considered as J&K is a tension between the relations of two countries. We will discuss it as Kashmir issue. Kashmir issue between the relation between the two countries, that is India and Pakistan. So let us discuss that after the independence of India, that is on 15th of August 1947, India got independent from British ruler, and it's a background that when India got independence from British ruler, and as a result of the British ruler means their policy was divide and rule, and as a result of divide and rule policy of British ruler, there was existence of Pakistan. At the same time, in 15th August 1947, partition takes place, and as a result of that partition, there was existence of Pakistan. So, when these both the countries after the existence of Pakistan and independence of India, what happened that a war started in 1948, the first war between the two countries. The issue was a Kashmir. The issue was a Kashmir, and what was logic behind that, and why there was a tension between the two countries. It has a history, a little history, because Maharaja Hari Singh was ruler of this state. Means this state was owning to the Maharaja Hari Singh. Kashmir issue is a major issue or dispute between the India and the Pakistan before independence of this India. Jammu and Kashmir was one of the princely state ruled by the Maharaja Hari Singh. जैसा कि आप जानते हो, ये स्टेट जो थी, it was not the part of India or Pakistan, but it was ruled by the Maharaja Hari Singh. As per the history, it was जो है टोटल जो है ये इसका महाराजा हरी सिंह की उसमें थी, एंड ये जो प्रिंसली स्टेट 584 princely states were ruled by the British ruler, and out of those 584, the Jammu and Kashmir was one of the princely state, and which was ruled by Maharaja Hari Singh. And on October 1947, जब अगस्त, September and October, after the 2 months of independence, several thousands of tribes means armed with the machine guns and mortars, etc., attacked by the frontier of the states. Means tribe means कबाइल बोले जाते थे, और वो आफ्टर जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो 2 महीने के बाद मीन्स अक्टूबर
1947 बहुत से सारे हज़ारों में जो कबाइल थे वो हथियारों से लैस थे, वो मशीन गन और मोटार गन जो है वो लेके थे, और उन्होंने इस JNK की जो बाउंड्रीज थी जो महाराजा हरि सिंह के अंदर थी, तो उन पे जो है वो हमला बोल दिया। ट्राइब्स मीन्स वर एडेड बाय दी पाकिस्तान, चूँकि वो जो ट्राइब्समैन थे कहाँ से थे, उनको किसने था, ये तो सीधा सिंपल सा था कि पाकिस्तान जो था उसका इंटरफियरेंस था, एंड ऑल दोज ट्राइब्स वर सेंट बाय द पाकिस्तान। एंड ऑन 26 अक्टूबर महाराजा हरि सिंह सेंट लेटर, उसमें चूँकि उस समय जो ये हुकूमत वहाँ की महाराजा हरि सिंह कर रहे थे, और जब ट्राइब्समैन जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और वो कश्मीर में आके हथियार लेके आए, तो उस समय जब उनका प्रेजेंस हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने इसके लिए एक लेटर लिखा, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो एक अंग्रेजी जनरल थे, उसको एक लेटर लिखता है। उस समय वो गवर्नर थे, और मींस स्टेट को इंडिपेंडेंस होने से पहले, अभी इंडिया की कोई वो जो है वो हुकूमत नहीं बनी थी, बट उसने इंडिपेंडेंस ले लिया था, आज़ादी हासिल हो गई थी। और वो जो वहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय के, वो उसने महाराजा हरि सिंह ने उसे एक लेटर लिखा जिसमें सारी वो लिखे इसमें अबाउट द डिसीजन ऑफ इंडिया, मतलब JNK महाराजा हरि सिंह डिसाइडेड टू go and make relation with India. So he write about all these decisions. What decisions are made by the Maharaja Hari Singh? He informed accordingly to the governor of that means Governor General of the India at that time. It means the Governor General then was Lord Mountbatten, and this Maharaja Hari Singh wrote a letter to him and informed him accordingly how he will decide to join the India. कैसे जो भी था, whatever the year was, if that was informed, means Governor General of the India was informed accordingly by Maharaja Hari Singh, and then Indian troops were dashed to the Kashmir. Pakistan refugees to reorganize the state of Kashmir. और उस समय क्या हो गया कि इंडियन ट्रूप्स when this Governor General of the India was informed by the this Maharaja Hari Singh that all those decisions which Maharaja Hari Singh took and informed accordingly to the Governor General, means when this happened, and at that occasion what happened that the Indian troops were dashed to the Kashmir, Pakistan, और ये इन्होंने हमला कर दिया उस कश्मीर जो मीन्स आज़ाद कश्मीर पे। कश्मीरी पाकिस्तान फॉर 14 मंथ्स तक वो लड़ने लगे, मीन्स जो कश्मीरी ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो उस पर इंडियन ट्रूप्स लड़ने लगे। एंड ऑन January 1st, 1948, India lodged a complaint with United Nations. और क्या होता है कि जनवरी 1 1948 में इंडिया ने लॉन्च की कंप्लेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो थी, वहाँ पे इंडिया ने अपनी वो जो है मतलब लॉन्च किया, अपनी कंप्लेंट सबमिट किए, अपने एतराज़ात, अपनी कंप्लेंट जो भी whatever were the complaints, those were lodged to the United Nation. उनको यूनाइटेड नेशन में उन्होंने लॉन्च की सारी, यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म किया। एंड ऑन जनवरी 5 1949 सीज फायर लाइन वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ द कंट्रीज, और यूनाइटेड नेशन with the interference of the United Nation वो जो है एक लाइन बना दी एक्चुअल, ये जो वो लाइन ऑफ कंट्रोल
बिटवीन द टू कंट्रीज जो है वो मानी गई बिटवीन बोथ द कंट्रीज। मीन्स यूनाइटेड नेशन ने की करारदाद, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है जनवरी 5 को जो है सीज फायर होता है। मीन्स फायरिंग जो उनका वो जो जंग चल रही थी बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कबाइल वगैरह थे, जो मीन्स वो बंद हो गई। और जो है लाइन वाज जो, और जो बिटवीन द टू कंट्री जो आज भी वो सीज फायर लाइन है, वो लाइन जो है वो एक्सेप्ट की गई। वो दोनों कंट्रीज ने उसको माना कि फलानी जो है बाउंड्री है बाय बोथ द कंट्रीज। और जो है इन सितंबर, देन अगेन इन सितंबर 1965 पाकिस्तानी फोर्सेस अटैक इंडिया। 1965 में दोबारा पाकिस्तानी फौज ने इंडिया पे दोबारा हमला कर दिया। और उस समय जो है वो एंड्यू देम ए क्रशिंग डिफीट, फिर दोबारा से उनको वो जो है हमला किया। नहीं मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस ने अटैक किया इंडिया पे और डिफीट हुई, डिफीट दी। और उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन सितंबर 20 1965। और उस समय दोबारा इंटरफियर किया यूनाइटेड नेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन, उनकी करारदादें जो है वो अडॉप्ट की गई। और 20 सितंबर 1965 को फिर वो करारदादों पे फिर दोबारा से अमल होता है। एंड कॉल्ड अपॉन द इंडिया एंड पाकिस्तान टू सीज फायर। उस समय जो है उस 20 सितंबर में जो अडॉप्ट जो रेजोल्यूशन जो करारदादें पास की, तो उस पर कंप्लीट सीज फायर की बात कर दी कि अब जो है इनके दरमियान में कोई जंग नहीं होगी। इट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल जो था यूनाइटेड नेशन का, उसमें ये डिसाइड हुआ कि मतलब अब इसके बाद जो है यहाँ कंप्लीट जो है वो सीज फायर होना चाहिए, कोई जंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो है दोबारा जो है उसके बाद जो है वो आइंदा से फिर लड़ाई नहीं होगी। तो फिर जो है पाकिस्तान ने उनका उल्लंघन करते हुए, मीन्स स्टिल टिल डेट जो है पाकिस्तान फ्लांग करता है, मीन्स नॉट ओबे whatever decisions are taken by both the countries or by United Nation or by any other treaty, जो भी हो सार की जो भी है। ये हमारे सार की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ऑल द कंट्रीज उन्होंने प्लेज किया था कमिटमेंट दैट नो कंट्री विल यूज इट्स लैंड फॉर द अदर्स डेंजर, मतलब अपने उसके लिए फॉर द सेक ऑफ अदर नेशन। मीन्स कोई भी कंट्री जो है किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ, दूसरे मुल्क के खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। बट व्हाट अबाउट द मिलिटेंसी इन कश्मीर, व्हाट अबाउट द मिलिटेंसी इन अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। ये जो है पाकिस्तानी जो हैं वो उसका उल्लंघन करते हैं, बार बार करते हैं। और दे आर गिविंग ट्रेनिंग्स टू द इंडियन कश्मीरी, particularly Kashmiri youths, and they are sending the Pakistani youths to the Kashmir. It means they are interfering the internal affairs of the India. Means ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उनका उल्लंघन करते आया है तब से। और दोबारा as per the interference of United Nations, a resolution was adopted by both the countries that there must be a complete law ceasefire, which was adopted in September 20, 1965. But after few years passed, फिर दोबारा से थोड़े से 1-2 साल गुजरने के बाद जो है on 3rd of December 1971 में once again पाकिस्तान attacked the India। 1971 में अभी उनका लागू हुआ था, अभी 3-4 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान once again मीन्स उसने फिर से एक बार अटैक कर दिया इंडिया पे। और वंस दिस इंडिया जो है वाज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम इन 1971, एंड इंडिया फेस्ड दैट अटैक ब्रेवली एंड डिफीटेड पाकिस्तान। मीन्स फिर उस समय जो है 71 में
इंडिया ने उनको बहादुरी से लड़ा और बहादुरी से लड़ने के बाद जो है वो पाकिस्तान को डिफीट दी एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिफीट देयर वाज ए क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मीन्स उस समय जो है द ईस्ट पाकिस्तान दैट इज सेट फ्री फ्रॉम द पाकिस्तानी रूलर्स विद द हेल्प ऑफ इंडिया। इंडिया ने इसकी वेस्ट पाकिस्तान की मदद की चूँकि देयर वो जो थे राइट्स वर वायलेटेड, दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड as a result of there were so many Indian Bengalis were there in Bangladesh, so with the sympathy of that this India helped Bangladesh और बांग्लादेश की आज़ादी हो जाती है। चूँकि शेख मुजीबुर रहमान ने जब when got a full majority in the first election after the this independence which took place in the Pakistan held in Pakistan, Sheikh Mujib got full majority, but despite of getting full majority, he is not given opportunity to make government, and despite of getting full majority, he was imprisoned और उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसको नहीं, ये एज ए रिजल्ट था कि शेख मुजीबुर रहमान कहीं न कहीं वाज लिंक्ड स्ट्रांगली विद इंडिया। सो पाकिस्तानी पूरे जो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी दैट अपोजिट टू शेख मुजीब और उसको इम्प्रिजन कर दिया। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वार which is won by the Indian army, means Pakistani army defeated in the third war, which the issue of that war was Bangladesh. At that time the war was not on the issue of Kashmir, but at that time the issue was this Bangladesh, but India won that war and Pakistan defeated. और डिफीट होने के बाद भी क्या होता है कि विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द डिफीट ऑफ पाकिस्तान then the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, agreed to held the conference at Shimla. उन्होंने शिमला एग्रीमेंट के लिए जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसिज इंदिरा गांधी ने एग्री हो गए कि शिमला में एक मुआहदा होगा, बातचीत होगी विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, भुट्टो के साथ जो है मीटिंग होगी और कश्मीर इशू जो है ना ही खालस कश्मीर के लिए, बट ये कश्मीर इशू ही है जिसमें जो है दीज मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ आर डन इन ऑल ओवर द इंडिया। मीन्स ये जो है कश्मीर, ये पाकिस्तान जो है वो उल्लंघन करता है सारी करारदादों का। इट इज़ ए कश्मीर इशू which is a tension between the two countries because पाकिस्तान जो भी करता है is not obeying, वो ओबे नहीं करता है और इसके लिए जो है वो कश्मीर इशू आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो फिर जो है इस पाकिस्तान वो ये जो पाकिस्तान और इंडिया जो है इन्होंने बहुत सारी और जो है आगे ट्रीटीज बहुत सारी साइन, हमारे वाजपेयी जी हमारे और बाकी वज़ीर आज़म वगैरह जो है वो दूसरे कंट्रीज में गए, एक दूसरे की कंट्रीज में गए ताकि इसको बढ़ाए। बस सर्विस का आगाज़ हुआ, रेल का आगाज़ हुआ, मीन्स बहुत सारे। तो दिस वाज रिगार्डिंग द कश्मीर एंड आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक्स।